Good evening, everyone. Good evening, everyone. Myself, Sneha Doval, MSc student, Govind Malla Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. So today we are going to discuss about activated sludge process, which is a biological wastewater treatment. So basically, when we talk about treating of wastewater, first we need to know what is wastewater. ठीक है? So wastewater is basically the water which is used once for various purposes like domestic use, bathing, cooking, washing clothes, etc. But here we talk about wastewater as industrial waste discharge. ठीक है? तो wastewater from industrial discharge is most harmful and that is need to be treated. Okay, so now the question arises, why there is a need to treat wastewater? Why? Why? हमें वेस्ट वाटर ट्रीट क्यों करना है? तो देखिए, वी नीड टू ट्रीट वेस्ट वाटर and factories only treat wastewater to meet the permissible limit of discharge of wastewater according to BIS 2490. BIS 2490 के मुताबिक जो भी वाटर के पैरामीटर्स हैं कि उसका BOD कितना होना चाहिए, उसका COD कितना होना चाहिए, उसकी टर्बिडिटी, टेम्परेचर, कलर, वेरियस पैरामीटर्स, उनको उनके मुताबिक हर फैक्ट्री को वेस्ट वाटर ट्रीट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब हम वेस्ट वाटर ट्रीट करने की बात करते हैं तो वहाँ 3 प्रोसेस होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीट करने के। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, रॉ सीवेज is passed through screens, commuter, grid chamber, and after that primary clarifier in which it is the मतलब sludge is settled down। ठीक है, तो देखिए इनकी इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस इन अनदर वीडियो। हेयर वी आर फोकसिंग मेनली ऑन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बहुत सारे मेथड होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज, फ्लोटेटिंग डिस्क। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, activated cell system, it is a most conventional unit for aerobic biological treatment of wastewater. Activated sludge system का, this is the SST component and this is a secondary treatment and it is a primary treatment। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम में एरेशन टैंक होता है, सेकेंडरी क्लैरिफायर होता है, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज होता है, जिसकी हम डिटेल में अभी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Activated sludge system is a biological system that makes the use of living bacterial floc to degrade the organic matter of the sewage and industrial waste in aerated bioreactors. Components of activated sludge include aeration tank, secondary settling tank, recirculation and recirculation। एरेशन टैंक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या था, पीएसटी। ठीक है, पीएसटी से पानी आया aeration tank. This aeration tank, here is a continuous supply of air, aeration tank. This is SST, secondary settling tank. Here is sludge. This is sludge. Here sludge is recirculated. तो देखिए एरेशन टैंक, इट इज अ बायोरिएक्टर which contains the primary raw sludge and microbial suspension. ठीक, it has an air compression which maintains the continuous airflow within the reactor. Inside the aeration tank, the microorganisms utilize or decompose the organic matter in order to release carbon dioxide, water, energy and similar compound। ठीक है, उसके बाद secondary settling tank, secondary settling tank, the mixture of aeration tank flows into a settling tank, activated sludge settle at the bottom due to gravity, clear treated water effluent is discharged from the top।
उसके बाद रिसर्कुलेशन। चलिए अभी इसको हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जो पानी आएगा, तो जो एरेशन टैंक में हमारा पानी गया, तो उसमें क्या है कि वहाँ एयर कंप्रेसर लगा है, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर मिक्स होता रहेगा। बायो मतलब जो बायो हमारा माइक्रोज प्रेजेंट हैं और स्लज के साथ, मतलब जो यहाँ पे सस्पेंडेड स्लज है वो मिक्स होता रहेगा एयर के साथ, जिसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी बनी रहेगी। और क्या कहते हैं, प्रॉपर एयर मिलती रहेगी हमारे एरोबिक बैक्टीरियाज को, एयर मिलेगी। जब वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जाएगा, तो जो हमारा स्लज सस्पेंड होगा, स्लज और हमारा एफ्लुएंट जो है वो सस्पेंड होगा। ये देखिए यहाँ से एफ्लुएंट रिलीज हो जाएगा और यहाँ से स्लज है जो स्लज बाहर आ जाएगा, एक्सेस स्लज। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि पार्ट ऑफ द स्लज इज रिसर्कुलेटेड बैक टू द एरेशन टैंक। इसका कारण क्या है, द रिसर्कुलेटेड स्लज इन द एरेशन टैंक which is rich in aerobically active microorganism, it activates the incoming wastewater। अब जो यहाँ हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं स्लज को, रिसर्कुलेटेड स्लज, इसको हम आर भी लिख देते हैं, रिसर्कुलेट स्लज। तो यहाँ पे हम इसका स्लज का थोड़ा सा पार्ट रिसर्कुलेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि ये एरोबिकली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो क्या हुआ कि जब हम इसको रिसर्कुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा और न्यू न्यू इनकमिंग वेस्ट वाटर है, उसकी एरोबिक एक्टिविटी बनी रहे एरेशन टैंक में। तो और वो एक्टिवेट करता है कि जहाँ पे इसका वेस्ट वाटर को एरेशन के साथ, तो इसलिए हम इसको रिसर्कुलेट करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिसाइकलिंग सिस्टम, जैसे हमने पीछे बात करी, अ पोर्शन ऑफ सेटल स्लज कॉल्ड रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू मेंटेन अ हाई पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स, ताकि माइक्रोब्स की हायर पॉपुलेशन बनी रहे। द रेस्ट द रेस्ट इज रिमूव फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। तो सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हमने क्या स्टेप पढ़े, वेस्ट वाटर फीड इनटू द एरेशन टैंक, देन सब्जेक्टेड टू द सेकेंडरी क्लैरिफायर। ठीक है, वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज इज रिसाइक्ल्ड, यहाँ पे गया, यहाँ पे रिसाइकलिंग हुआ, उसके बाद सेकेंडरी एफ्लुएंट इज फर्दर डिसइंफेक्टेड। ठीक है, देखिए डायग्राम में भी यही बता रहा है कि यहाँ पे पीएसटी था, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, उसके बाद इट गो ऑन टू द एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में प्रॉपर एयर की मिक्सिंग थी, प्रॉपर एयर मिक्स हुआ, उसके बाद क्लैरिफायर में गया, ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, एसएसटी और सेकेंडरी क्लैरिफायर। तो एक्सेस स्लज तो हमने बाहर निकाल दिया और ये है एफ्लुएंट। एक्सेस स्लज तो हमने बाहर निकाल दिया और रिटर्न स्लज, पार्ट ऑफ द स्लज एरेशन चैम्बर में वापस दे दिया। क्यों दे दिया, ताकि माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, अब organic load rates, BOD loadings, these are the various equations and numericals, मतलब various equations uh, used in activated sludge treatment for designing of the for designing of the sludge for designing of the sludge treatment in various factories, various industries की। ठीक है, तो उसके लिए देखिए solid retention time, it refers to the duration for which solid remains in the aeration tank, SRT, kg of mlvss in the aeration tank upon kg of mlvss wasted per day plus kg of mlvss lost per day। तो mlvss क्या है, mlvss है मेजरमेंट ऑफ, मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सिस्टम, सिस्टम में कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सॉलिड रिटेंशन टाइम, मतलब विद ड्यूरेशन फॉर विच द सॉलिड रिमेन इन द एरेशन टैंक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एफएम रेशियो, एफएम रेशियो इज द फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बीओडी अप्लाइड per unit of MLVSS, mixed liquid volatile suspended solid। फूड टू माइक्रोऑर्गेनिज्म रेशियो, फूड मतलब ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक लोड है हमारा वेस्ट वाटर में, टू द माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब उन दोनों का रेशियो क्या है, फूड टू माइक्रोऑर्गेनिज्म रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड एज Q into BOD upon MLVSS into V। Q is a flow rate, flow rate of the waste water। ठीक, BOD biological oxygen demand, which is measured in mg per liter। The next is sludge volume index, used to detect settability of the sludge। Sludge volume index is equal to
V into 1000 upon ml/VSS. V is the volume of lateral sludge. Sludge volume index, ये हमें मदद करता है यूज टू डिटेक्ट सेटेबिलिटी ऑफ द स्लज, कि स्लज कितनी जल्दी देर में मतलब सेटल हो रहा है, कितना स्लज सेटल हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Different type of activated sludge processes. The activated sludge process has several variations, each designed to optimize treatment for different wastewater characteristics, space constraints और performance goals. तो देखिए कह रहा है कि एक्टिवेटेड स्लज के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, कि हमें मतलब किस टाइप का वेस्ट वाटर ट्रीट करना है, क्या क्या वेस्ट के करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वेस्ट वाटर के, उसके हिसाब से स्पेस कितना है हमारा, जहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है तो वहाँ प्लांट में कितना स्पेस है, परफॉर्मेंस गोल्स क्या क्या न्यूट्रिएंट रिमूव करना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो पहले देखिए कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज, जो हम पीछे जो हमने अभी फर्दर मतलब जो हमने पीछे स्लाइड्स में बात करी, तो उसमें हम सबसे पहले कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज की बात करी थी। कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज is the most commonly used form of activated sludge process, especially in the municipal treatment plants. Key features: flow. Plug flow means wastewater moves in a one direction throughout the aeration tank. Aeration time is 4 to 8 hours. Sludge age is 5 to 15 days. MLSS is 2000 to 4000 mg per liter. देखिए जितना ज़्यादा MLVSS का कंटेंट होगा उतना ही हमारा माइक्रोब्स की ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो जो हमारे लिए अच्छी बात है एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, तो कंपोनेंट्स देखे जो हमने प्रीवियसली पढ़ा कि सिंपल डिजाइन, प्राइमरी क्लैरिफायर से एरेशन टैंक से सेकेंडरी क्लैरिफायर, सेकेंडरी क्लैरिफायर से स्लज रिसाइकलिंग, तो ये फिर से स्लज यहाँ पे रिसाइकिल होगा एरेशन टैंक। ठीक, ये है सिंपल। अब सेकंड में बात करते हैं एक्सटेंडेड एरेशन। इट इज अ वेरिएशन ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम विद अ लॉन्गर एरेशन टाइम एंड लोअर ऑर्गेनिक लोडिंग, ऑफन यूजिंग स्मॉल और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो देखिए एक्सटेंडेड एरेशन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस एरेशन टाइम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एरेशन टाइम जैसे पीछे 4 to 8 आवर्स था, तो हमारा एरेशन टाइम 18 to 36 आवर्स है यहाँ, और एरेशन टाइम इज 18 to 36 आवर्स। तो एरेशन से क्या होगा कि लो ऑर्गेनिक लोड होगा और स्लज प्रोडक्शन कम होगा। एरेशन ज़्यादा होगा तो माइक्रोब्स को प्रॉपर एयर की सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से डिग्रेडेशन प्रोसेस हमारा स्मूथ चलता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप फीड एक्टिवेटेड स्लज। In stir-feed activated sludge, it is a modified version of plug flow where wastewater is introduced at multiple points along the aeration tank to even out the organic load. देखिए जैसे हम पहले पीछे बात करी थी तो PST था, ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, तो यहाँ से जो पानी आया था सीधा एक सोर्स था, और यहाँ ये है एरेशन टैंक, सीधा ऐसे पानी एक सोर्स से एंटर करा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पीएसटी से जो पानी आया डिफरेंट सोर्सेस से एंटर करा। देखिए ये दिस इज द एरेशन टैंक, ये पूरा एरेशन टैंक है, ये पूरा एरेशन टैंक है, तो पानी मल्टीपल सोर्सेस से एंटर करा। ठीक है, पानी मल्टीपल सोर्स से एंटर करा, तो जिसकी वजह से क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड वेयर वेस्ट वाटर इनटू द मल्टीपल प्लांट अराउंड द एरेशन टैंक टू इवन आउट द ऑर्गेनिक लोड। ठीक, एरेशन टाइम सिमिलर, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेटर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, इम्प्रूव फ्लॉक फॉर्मेशन एंड सेटलिंग, रेजिलिएंट टू हाई और वेरिएबल बीओडी लोड्स। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे। Sequencing batch reactor, it is a fill and draw type system where all treatment stage occur in a single tank में ये सारे प्रोसेस सिंगल टैंक में होते हैं। ठीक, फिल, रिएक्ट, सेटल, डिकेट और आइडल। ठीक, साइकिल टाइम 4 to 12 आवर पर बैच। ये मोस्ट वाइडली यूज प्रोसेस है सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। तो जिसमें क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहले फिल होगा, वेस्ट वाटर यहाँ आया, फिल हुआ, उसके बाद रिएक्शन हुई, एरेशन हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एयर मिली, रिएक्ट करे, तब वो टाइमली सेटल होंगे, सेटल होने के बाद उसको हम
डिकेंट करेंगे, खाली करेंगे, एफ्लुएंट और स्लज अलग अलग ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ एक्सेस मतलब जो आइडियल कंडीशन है ये फिलिंग और डिकेंटिंग के बीच का टाइम इंटरवल है, मतलब उसके बीच का स्टेज ये गैप है, ठीक। ये क्योंकि ऑप्शनल है। Advantages: compact design, flexible and efficient for small to medium communities, excellent to neutral removal। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।